Namaskar, myself M. K. Mishra, TGT English of JNV Devgha, and today's chapter is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. This is the third chapter of class 9th textbook. Now about the author. Catherine Mansfield was a famous short story writer who was born on 14th October 1888 and brought up in colonial New Zealand. She suffered a fatal pulmonary hemorrhage and died on 9 June 1923. She was a prolific writer in the final years of her life. Much of her work remained unpublished till her death. कैथरीन मैन्सफील्ड एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो 14 अक्टूबर 1888 में पैदा हुए और वो न्यूजीलैंड में पले बड़े, लेकिन उन्हें एक सांस की बीमारी थी और जिसके हैमरेज के कारण 9 जनवरी 1923 को अपनी कम उम्र में उनकी मौत हो गई। वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव राइटर थे अपने लाइफ के फाइनल ईयर में, लेकिन उनके अधिकतर वर्क जो उन्होंने लिटरेचर में लिखे थे वो उनके डेथ तक पब्लिश नहीं हो सके थे। Hello students, very good morning to you, and I am here with the third chapter of class 9th, the most important chapter, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. First of all, I have two questions in my mind before I start the lesson, that how do you feel when your father or mother punished you or punish you? जब तेरे माता पिता तुम्हें दंडित करते हैं या करते थे तो कैसा महसूस होता है तुझे? Do you think that your mother and father punish you for your benefit, or they are the cruel creature, they don't love you? Actually, my dear student, father and mother, they always think about our benefit and they never punish us without any reason. They have the quality to love their children, and they always love and try to make us successful. Okay, and second thing, that there are many kinds of fathers. Some are very gentle, very sour, some are very strict and disciplined. What type of father you like? Obviously know that everyone likes loving father, but it doesn't mean the strict father is not good. No doubt they are hard, but their hardness is nice. वो स्ट्रिक्ट जरूर होते, कठोर जरूर होते, लेकिन उनकी कठोरता सुंदर होती, अच्छी होती। यहाँ भी राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड, born in 14th October 1888, and he died in very early age, that 9th January 1923, due to the very fatal pulmonary hemorrhage, and most of her writings published after his death. She was the writer who was born and brought up in the colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield. Okay. Now I am talking about some important thing about this story. All the children have natural attachment with their mother and father, with their parents. Okay, they always desire to receive their love and affection. बच्चे हमेशा चाहते हैं कि माता पिता का उन्हें प्यार मिले. They always think that their parents must be very loving, who always fulfill their desires. But sometimes the rude behavior of parents only develop a deep sense of separation among the children. लेकिन पेरेंट्स का बिहेवियर कई बार रूड हो जाता तो एक अलगाव, एक डिटैचमेंट होता. Even if our parents are rude, strict,
but they still have one desire in their mind. They want to make us successful. They work hard to make their family, make their children happy. So don't take your father's strict or discipline or any hardness uh, as a very bad way, very negative way. In this particular chapter, Kezia, a little girl, the main character of the story, and her father is very successful businessman. She remained always busy in his life. He had no time to devote for their children, for their family. Every morning before going to job, Kejia's father came to her room and gave a casual kiss to her. And in response, Kejia said, "Goodbye, father." But actually, Kejia was very afraid of her father. Actually, Kejia बहुत डरी होती थी अपने पापा से, because her father was very strict, very disciplined, and their behavior is also somehow you can say they are strict. And Kezia didn't like. Kezia felt that her father is like a figure to be avoided. She felt that her father is a giant like figure. उसका वो अपने पिताजी को एक दैत्याकार चेहरे के रूप में महसूस करती थी और उन्हें लगता था कि ये आदमी ऐसा है जिन्हें अवॉइड किया जाए, जिनसे बचा जाए. एंड वेन एवर हर फादर्स vehicle or the cart went away to the office, then she felt a sigh of relief in her mind. Though sometimes Kezia nurses her father. When father came back in the evening, she used to uh, take off his shoes. She also served tea. But whenever she came in front of before her father, she always stutters. जब वो अपने पापा के पास आती, हकलाने लगती. She was so afraid, वो इतनी डरी हुई होती. She never even speak fluently, though she can speak very fluently, but before her father, she always stutters. And father says, Kejia's mother, that why that child is at the brink of suicide. जैसे मानो कि ये बच्चा आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया हो, ऐसा बिहेव क्यों करती है. Okay, Kejia's grandmother, she is also a very good character and always tried to make a good relationship between Kezia and her parents. Though Kejia's relation to her parents is very very formal, बहुत ही अच्छा रिलेशन नहीं था और वो हमेशा डरी हुई होती थी. On Sundays, Kejia's grandmother told, go to the father's bedroom and have a nice talk with your father and mother. But whenever Kezia, with a hesitating steps, entered the bedroom of father or drawing room, then she found that her father was snoring, covering his face from the handkerchief. अपने with the handkerchief, रुमाल से चेहरे को ढककर वो खर्राटे ले रहा होता, while the mother was busy in reading the books, and both have no time to have a nice talk with Kezia. One day it so happened that Kejia's grandmother always tried to do something good to make the very cordial relation with her father. So grandmother told Kezia to make a birthday gift for Papa because his birthday is approaching. So Kezia decided to make a pin cushion of yellow silk cloth. She stitched the three sides of that cloth and she wanted to fill that pin cushion with the scraps. वह पिन कशन के तीन किनारे के सिल्क कपड़े के तीन किनारे को उसने सिलाई की थी और उसमें कुछ स्क्रैप डालना चाहती थी. She went to the bedroom of her father. There are some very fine sheet of the paper kept there on the table. She tore the paper and filled the pin cushion with that scraps. But unfortunately, it was so wrong that the paper was very important. Paper was his father's speech for the port authority. And when father came to the
who came to the house, he started shouting, who had done this? किसने इस स्पीच वाले पेपर को लिया, ये कहाँ गायब हो गया? एंड एवरी वन वॉज क्वेश्चन एंड फाइनली केजिया टोल्ड द फैक्ट दैट सी हैड डन दिस। केजिया ने इस फैक्ट को स्वीकार कर ली थी कि एक्चुअली उसी ने ऐसा किया था। रिजल्ट क्या हुआ? फादर बिकेम सो एंग्री एंड ही टुक अ रूलर इन हिज हैंड। उसने हाथ में एक डंडा लिया एंड बीट केजिया बैडली ऑन हर पिंक पाम। उसके उस गुलाबी हथेली पर कसकर डंडे से मारा। दैट वाज द वेरी रूड बिहेवियर ऑफ द केजियाज फादर। नो वन will appreciate, no one will praise that behavior of Kejia's father, but he couldn't resist his emotions, and he did such a rude behavior with that little girl. And actually this should not be done. Father or mother must know, must learn the parenting, the real parenting, otherwise there will be detachment. एक अलगाव का भाव पैदा होता है। एक सही मायने में बच्चे और पेरेंट्स के बीच का रिलेशन नहीं रह पाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड यू नो दैट केजिया व्हाट शी थॉट, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर? भगवान ने फादर को बनाया ही क्यों है? टू बीट द चिल्ड्रन, टू पनिश द चिल्ड्रन। एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग, एक नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव साइकोलॉजी दैट डेवलप इन द केजियाज माइंड अगेंस्ट हर फादर। उसके पापा के प्रति बहुत ही गंदा फीलिंग उसके दिमाग में डेवलप हो गया था। ऑन द अदर हैंड, जस्ट नेक्स्ट टू हर डोर देयर वाज अनदर फैमिली एंड मिस्टर मैकडोनाल्ड, द न्यू कैरेक्टर, and he was the another kind of father. He had 5 children and he always used to play with the children, and when the children do anything wrong, but the father always loving. बच्चे कुछ भी गलती कर दें, उसमें लटक जाएं, उनके कंधे पर चढ़ जाएं, उन्हें पानी फेंक दे, बट मैकडोनाल्ड नेवर रिएक्टेड, कभी वो रिएक्ट नहीं करता। और केजिया को लगता था कि नो, देयर आर अनदर काइंड ऑफ फादर, दूसरी तरह के भी पापा होते हैं हु लव देयर चिल्ड्रन। तो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन केजियाज फादर हु हैड नो टाइम, ए बिजी बिजनेसमैन, and he never devoted his time to the parents, though he worked hard for the success of, never devoted his time for the family or the children. अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कभी समय नहीं देता था, लेकिन वो कठिन मेहनत करता था बच्चों के और परिवार की खुशियों के लिए। थोड़ा सा फर्क था। while मैकडोनाल्ड had lot of time to offer to the children and he play with the children. Okay, and one day it so happened that एक दिन ऐसा हुआ कि केजियाज mother became ill. She was hospitalized and grandmother also went to the hospital, and Kezia was alone in the house under the care of his cook Alice. Kejia's father was also there, but when Kezia went to bed, जब केजिया बेड पर जाती है, she had always the terrible dream, the nightmare. One of the butcher with a rope came with a knife to her. Every day she used to see such a nightmare. अक्सर वो भयानक सपने देखती थी, कसाई का जो रस्सी और चाकू लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। That day when Kezia was alone, जब केजिया अकेली थी, she told Alice that she could not sleep alone because she wanted grandmother, and same thing happened on that day. Alice cook told that Kezia, please don't make a noise, Papa is there. And she tried to sleep, but the same nightmare, same terrible dream, वही भयानक सपना उस दिन भी आया, that butcher, that rope, that knife, and she started crying. वो चिल्लाना शुरू की. Then father came into her room, picked her in his arms, उसे अपनी बाहों में उठाया, embraced her, and went to took her to his bedroom. Kezia was very close. While Kezia was sleeping, she was very close to the to the chest of her father, and she was feeling the beating of the heart of her father. वो महसूस कर रही थी अपने पापा के दिल की धड़कनों को, और पापा बड़े प्यार से उसे आलिंगन करके, उसे चिपका कर और उसे सुलाए हुए थे अपने साथ।
फर्स्ट टाइम केजिया's एटीट्यूड चेंज रिगार्डिंग हर फादर। पहली बार केजिया का एटीट्यूड बदला था, क्योंकि केजिया को लगता था कि उसके फादर जो हैं वो बहुत ही गंदे हैं, बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। लेकिन पहली बार लगा कि हर फादर हैड ए बिग हार्ट, उनके पापा का भी बहुत बड़ा दिल है। एंड ही वॉज ए लविंग फादर, दो ही इज हार्ड बट हिज हार्डनेस इज नाइस। वो हार्ड हैं लेकिन उनकी कठोरता सुंदर कठोरता है। और उसे महसूस हुआ कि हर फादर इज ऑल्सो अ गुड फादर एंड शी शुड वैल्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता के महत्व को समझना चाहिए। और इन दिस वे सी मैनेज the things. So the story has a very wonderful message regarding the relation between the parents, real parenting, relation between the parents and their children. What is the feeling, what is the psychology of the little children for their parents, their loving parents. उनके प्यारे माता पिता के प्रति उनकी सोच क्या होती जब उनके आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, जब उनके माता पिता का बिहेवियर थोड़ा सा र्यूड हो जाता, तो वो क्या सोचती हैं, इसके विषय में ये कहानी है। कहानी के आगे के पार्ट को यही बात जो मैंने आपको बताया उस स्लाइड्स से और इमेजेस से फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप चलिए अगले स्लाइड की ओर और इस कहानी को और भी अच्छी तरीके से समझिए। Now come to this slide about the story. Children are natural attachment with their parents and they always desire to receive their love and affection. बच्चों का पेरेंट्स से रिश्ता बिल्कुल नेचुरल है और वो इच्छा रखते कि उन्हें पेरेंट्स के प्यार और स्नेह मिले। द rude behavior of the parents only develops a deep sense of separation among the children. लेकिन अगर पेरेंट्स का व्यवहार कठोर हो तो एक प्रकार के अलगाव का भाव पैदा होता है बच्चों के बीच। However, our parents always have only one desire to make us successful and for it they leave no stone unturned. लेकिन इतना तय है कि हमारे पेरेंट्स की एक अंतिम इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को सफल देखे और उसके लिए वो कोई कसर उठा नहीं रखते। For better interpersonal relationship between the parents and their children, mutual interaction and regular communication is required. अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक अच्छा रिश्ता बनना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसी बातचीत हो, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करें, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स एस्पायरेशन, एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन बेटर वे। ऐसा अगर बातचीत होता हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो हमें बच्चों के और पेरेंट्स के आकांक्षाओं के, उनके इच्छाओं के, उनके ताकत के और उनके कमजोरियों के विषय में अच्छी तरह से पता लगाने में मदद मिलता। अगर हम पेरेंट्स होकर बच्चों को नहीं पहचानते या बच्चे अपने पेरेंट्स के से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, तो उन परिस्थितियों में एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ता और फिर आपका जो नेचुरल अटैचमेंट है, आप जो सच्चा प्यार पाना चाहते हैं, वो आपको पेरेंट्स से नहीं मिल पाता। ये इस कहानी के मूल बिंदु हैं जिसको राइटर ने उठाने की कोशिश की है। अब इस इमेज में दो इमेज दिखाया गया है। एक लिटिल गर्ल जो इसका टाइटल है, जहां वो बिल्कुल परेशान से दिख रही है, और दूसरा वही लिटिल गर्ल अपने पेरेंट्स से एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उसके कमरे में गए हैं। तो पेरेंट्स में देख रहे हैं कि उसके फादर जो है सोफ़ा पर सोए हुए हैं और माँ बिजी है किताबों को पढ़ने में, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जैसा इस कहानी में वर्णन किया गया है। नाउ कम टू द की पॉइंट्स ऑफ स्टोरी। केजिया इज ए लिटिल गर्ल ग्रोइंग इन हर लविंग ग्रैंड मदर्स केयर। केजिया एक छोटी सी लड़की है जो अक्सर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। सी हैज़ वेरी फॉर्मल रिलेशन विथ हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ता बहुत ही फॉर्मल है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर एंड कंसिडर्ड हिम अ जाइंट लाइक फिगर। वो अपने पापा से बहुत डरी रहती और पापा को एक दैत्याकार चेहरे के रूप में वो महसूस कर सकती थी। सी ऑफन स्टैमर्ड बिफोर हर फादर। अपने पापा के सामने जब भी खड़ी होती तो वो हकलाना शुरू कर देती, जबकि वो अच्छा बोल सकती थी। ऑन संडेज व्हेन सी वेंट टू स्पेंड सम टाइम विथ हर पेरेंट्स। रविवार को जब उसके पेरेंट्स घर में होते और वो कुछ वक्त गुजारने के लिए
पेरेंट्स के पास जाती, सी फाउंड हर फादर वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफा, तो पापा सोफा पर सोए रहते, वाइल मदर वॉज बिजी इन रीडिंग बुक्स, जबकि माँ किताबों में व्यस्त होती। वन डे हर ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर ए गिफ्ट फॉर द फादर्स बर्थडे। एक बार ग्रैंड माँ ने सजेस्ट किया कि वो पापा के बर्थडे के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार कर दे। सी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विथ येलो सिल्क क्लॉथ एंड फिल्ड द केस विथ पेपर। उसने एक येलो सिल्क का कपड़ा लिया और उसका पिन कुशन बनाने के लिए उसमें उसने पेपर डाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली द पेपर वॉज ऑफ हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर पोर्ट ऑथोरिटी। लेकिन दुर्भाग्य से वो पेपर महत्वपूर्ण था जो उसके पापा का एक स्पीच था। केजिया वॉज बैडली बीटन बाय हर फादर व्हेन सी एडमिटेड हर मिस्टेक। जब पापा के सामने इस मिस्टेक को उसने स्वीकार कर ली कि उसने पेपर को फाड़ दी है, तो पापा ने उसे बुरी तरह मारा था। मैकडोनाल्ड वॉज अनदर काइंड ऑफ फादर इन हर नेक्स्ट डोर एंड ही लव्ड हिज चिल्ड्रन। दूसरी तरफ मैकडोनाल्ड एक दूसरी तरह के पापा हैं जो उसके पड़ोसी हैं और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वन नाइट सी वॉज अलोन इन द हाउस एंड सी वॉज अफ्रेड टू सी द टेरेबल ड्रीम एट नाइट। एक रात जब वो घर में अकेली थी और रात के भयानक स्वप्न से डरी हुई थी, हर फादर पिक्ड हर इन हिज आर्म्स एंड हग्ड हर। First time she felt that her father was not so bad. He had a big heart, but no time to express his love. He also needed her love and sympathy. Now come to the different part of the story. First, Kezia and her father. Kezia is a little girl and main character of the story, and her father was a busy man who had no time for his children. He is very strict एंड इज प्रेजेंस एट होम फ्राइटन्स केजिया। उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उसको कोई वक्त नहीं होता था केजिया के लिए, और जब भी घर में होते तो केजिया डरी सी रहती। फॉर केजिया हर फादर इज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। केजिया के लिए उसके पापा एक ऐसा तस्वीर था जिनसे बचा जाए, जिनसे डरा जाए। सी कैन स्पीक फ्लुएंटली बट व्हेन सी टॉक्स टू हर फादर, वो अच्छा बोल सकती थी, लेकिन जब पापा से बात करती सी ऑलवेज स्टटर्स, वो हमेशा हकलाती थी। सी फील्स sigh of relief, वह राहत महसूस करती when her father is gone to office, जब उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं। Though every morning he gives casual kiss to Kezia and she respond goodbye, हर मॉर्निंग पापा जो है ऑफिस जाने से पहले केजिया को किस करते, केजिया भी उन्हें गुड बाय बोलती। इन द इवनिंग केजिया हेल्प्स हर फादर बाय रिमूविंग हिज शूज, शाम को केजिया अपने पापा को मदद करती, उनके जूते उतार देती। हर मदर टेल्स दैट इट वाज हर रिवार्ड फॉर बीइंग ए गुड गर्ल, और मम्मी बोलती कि अगर ऐसा तुम करेगी तो तुम एक अच्छी लड़की कहलाएगी। ऑन संडेज केजिया गोज टू हर फादर्स रूम टू स्पेंड सम टाइम विथ पेरेंट्स, बट सी फाइंड्स हर फादर वाज स्नोरिंग ऑन द सोफा एंड मदर इज बिजी इन रीडिंग बुक्स। संडे को अपने पापा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए जब रूम में जाती तो पाती कि पापा जो हैं सोफा पर पसरे हुए हैं, जबकि मम्मी जो है किताबों को पढ़ने में व्यस्त है और कोई उन्हें सही लव और अफेक्शन नहीं दे पाता। इसलिए केजिया परेशान होती, वो पापा को एक दैत्याकार चेहरा, एक ऐसा फिगर महसूस करती जो डरावना होता, जो अवॉइड किए जाने के लायक होता। और जब भी केजिया के पापा नहीं रहते तो वह अपने लाइफ में एक राहत महसूस करती, जबकि वो पापा को हेल्प भी करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल डरी होती। अब वन ऑफ द क्राइसिस इन द फैमिली, उस फैमिली में एक संकट तब आया कि वन डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू मेक अ बर्थडे गिफ्ट फॉर फादर। ग्रैंड माँ ने सजेस्ट किया कि पापा से गुड रिलेशन बनाने के लिए एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट बना लो। सी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विथ येलो सिल्क क्लॉथ, उसने एक पिन कुशन बनाई थी जिसमें उसने येलो सिल्क का कपड़ा ली एंड स्टफ द क्लोथ केस विथ स्क्रैप्स ऑफ पेपर, और उसका एक केस बनाकर जिसे तकिया बनाते हैं उसमें स्क्रैप ऑफ द पेपर के टुकड़े डाली। बट सी टोर द इम्पॉर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर्स स्पीच फॉर पोर्ट ऑथोरिटी, लेकिन दुर्भाग्य से जो पेपर उसने स्क्रैप बनाई थी वो पापा का महत्वपूर्ण पेपर था, जो एक स्पीच था पोर्ट ऑथोरिटी के लिए। When केजिया एडमिटेड द फैक्ट, जब केजिया ने सत्य को बता दी, हर फादर हैड बीटन हर विथ रूलर, तो पापा ने उसे डंडे से मारा। सी वेप्ट बिटरली फॉर आवर्स एंड हर ग्रैंड मदर मेड हर एफर्ट टू कंसोल हर, वो लंबे समय तक रोती रही। ग्रैंड मदर ने काफ़ी कोशिश की उसे सांत्वना देने की, लेकिन केजिया थॉट
वाई डिड गॉड मेक फादर फॉर। लेकिन केजिया के मन में अपने पापा के इस र्यूड बिहेवियर के प्रति जो एक भयानक शब्द उसके इमोशन में, उसके साइकोलॉजी में आया था, वो ये था कि वाई डिड गॉड मेक फादर फॉर। दैट इज द मेन लाइन ऑफ द स्टोरी, कि भगवान ने आखिर पिता को क्यों बनाया, क्या केवल दंडित करने के लिए, केवल डांटने के लिए, जबकि केजिया अपने पापा से गुड रिलेशन बनाने के लिए अपने ग्रैंड मादर के कहने पर उनके बर्थडे के लिए ही एक गिफ्ट बना रही थी। उसकी गलती केवल इतना कि उसने पोर्ट अथॉरिटी के पेपर को अनजाने में फाड़ दी थी, और इस पर उसके पापा का जो रिएक्शन था वो इतना र्यूड था जो एक सामान्य पापा से उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतने छोटे से बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा जाए। दैट वाज द क्राइसिस इन द फैमिली। ये फैमिली का बड़ा संकट था। इस दो फिगर में आप उस संकट को पहचान सकते हो, जिसमें एक तरफ पापा जो है एक बच्ची को, उस केजिया को बुरी तरह पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पापा अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं। ये दो तरह के फादर को इस इमेज में दर्शाया गया है। नाउ कम टू मैकडोनाल्ड, अ डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। मैं दूसरे टाइप के फादर की बात कर रहा था, तो उसके ठीक पड़ोस में मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज ए नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ केजिया। उसके पड़ोसी थे मैकडोनाल्ड। केजिया साव दैट ही यूज टू प्ले विथ हिज चिल्ड्रेन। वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे लविंगली, बड़े प्यार से। एक्चुअली मैकडोनाल्ड को 5 बच्चे थे और 5 बच्चे के साथ वो खेलते थे। द चिल्ड्रेन ऑल्सो प्लेड विथ हिम विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन। बच्चे बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ पापा के साथ उछलते थे, कूदते थे, खेलते थे। सो शी फेल्ट दैट ऑल फादर्स वेर नॉट सेम। पहली बार उसे दो तरह के पापा का एहसास हुआ। जब पहली बार उसे लगा था कि वाई डिड गॉड मेक फादर फॉर, जब दूसरी बार उसने मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखा तो उसे पता चला कि फादर एक जैसे नहीं होते, बल्कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे एक अलग किस्म के फादर भी होते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड हैड लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विथ हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन। मिस्टर मैकडोनाल्ड के पास पर्याप्त समय थे जो अपने बच्चों को वो दे सकते थे, अपने फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे। और मिस्टर मैकडोनाल्ड में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी भी बच्चे को डांटते नहीं थे, चाहे बच्चा कैसा भी हरकत कर दे, उस पर मिट्टी फेंक दे, पानी फेंक दे, उसके कंधे में लटक जाए, उसके कपड़े में लटक जाए, लेकिन मिस्टर मैकडोनाल्ड कभी भी बच्चे के साथ र्यूड बिहेवियर नहीं करते थे, और इसलिए मैकडोनाल्ड वॉज कॉल्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। Now come, Kezia changed her attitude for her father. मैंने बताया कि केजिया का अपने पापा के प्रति जो एटीट्यूड था, एक जेंट लाइक फिगर, और दूसरा मैकडोनाल्ड के प्रति जो एटीट्यूड था कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। लेकिन यहाँ उसका एटीट्यूड बदलता है। वंस केजियाज मदर बिकेम इल एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। केजिया की माँ बीमार पड़ी, ग्रैंड मादर भी हॉस्पिटल चली गई। शी वॉज अलोन इन द होम, घर में अकेली थी, अंडर द केयर ऑफ एलिस द कुक, अपने कुक के केयर में। शी वॉज अफ्रेड वाइल गोइंग टू बेड, वह जब सोने गई जा रही थी तो वो डर गई थी। एज शी हैड ऑफन नाइटमेयर एट नाइट, चूँकि रात को अक्सर उसे भयावह सपने आते थे। द सेम नाइटमेयर विजिटेड अगेन, वही सपने उस दिन भी आए थे। एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो चीखना शुरू कर दी थी अपने बेड पर। हर फादर केम देयर एंड पिक्ड हर इन हिज आर्म्स, उसके पापा ने उसे उठाया था अपने बाहों में। शी स्लेप्ट विथ हर फादर होल्डिंग हिज शर्ट टाइटली, अपने पापा के शर्ट को कसकर पकड़कर वो पापा से चिपक कर सोई हुई थी। एंड फेल्ट द हार्ट बीट ऑफ हिम, और उसके दिल के धड़कनों को महसूस कर सकती थी। फर्स्ट टाइम शी रियलाइज दैट हर फादर हैड ए बिग हार्ट, उसे महसूस हुआ था कि उसके पापा का दिल भी बहुत बड़ा है। शी वॉज ऑल्सो ए लविंग फादर, उनके पापा भी प्यारे पापा हैं। एंड नॉट एज हार्श एज शी थॉट, और उतने कठोर नहीं जितना वो सोचती है। हर फादर हैड नो टाइम टू प्ले विथ हर, वो उसे समझ में आया था कि उसके पापा इतने व्यस्त हैं कि मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह उसके साथ खेलने का उनके पास वक्त नहीं होता। एंड ही ऑल्सो नीड्स सिंपैथी एंड केयर, और वो इतने थक जाते हैं, इतने दिन भर काम करते हैं कि उन्हें भी किसी की सिंपैथी और उन्हें भी किसी के केयर की ज़रूरत है। ये बात केजिया को पहली बार एहसास हुआ था जब उसके पापा ने बड़े प्यार से उसे अपने साथ सुलाया था, और उसने महसूस किया था कि उसके पापा भी उतने बुरे नहीं हैं जितना कि वो सोचती थी। ठीक है, मैकडोनाल्ड एक अलग किस्म के पापा थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त था, लेकिन इनके पापा भी कठिन मेहनत करते थे ताकि वो अपने फैमिली का, अपने बच्चों के कैरियर को, उनके फ्यूचर को एक हैप्पीनेस दे सके।
इस फिगर में जो मैं अभी बता रहा था कि पापा ने उसे किस तरह अपने बाहों में उठाया था और फिर उसे अपने बेडरूम में ले गया और उसे अपने सीने पर चिपका कर सुलाया था, और ये इस बात का प्रतीक था कि केजिया को पहली बार अपने फादर्स के लव का एहसास हुआ था, जबकि अब तक उसे अपने फादर के चेहरे में एक दैत्य नज़र आता था, एक ऐसा तस्वीर नज़र आता था जिसे जो डरावनी थी, जो अवॉइड किए जाने लायक थी। इस तस्वीर से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इस कहानी को समझे होंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।